Very good morning once again. So students, we were doing chapter 5, Great Indian Desert. So let me recapitulate. देखें कल कितना आपको याद है कल का किया हुआ. So now tell me, in which Indian state desert lies? Tell me the states where desert lie. Write in the chat box. I am reading your chat side by side, bache. Very good. Gaurika, clap for you. Gaurika has given the answer and rest of the students are also giving. सब बच्चे बेटे chat box use किया करो so that I can come to know. Very good. Pakistan is also there. मैंने इंडियन स्टेट्स पूछा है बेटा जी. पाकिस्तान इंडियन स्टेट में नहीं आता है ना. Namanjot, Gujarat. Only Gujarat is there. मैक्सिमम पार्ट जो है वो राजस्थान कवर करता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भी कुछ पार्ट्स जो है वहाँ पे डेजर्ट लाई करता है. क्लियर? ओके. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडियन डेजर्ट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स. Yes, very good. Everybody must use chat box. सब बच्चे chat box use करो. What is the other name of Great Indian Desert? Good, very good. Thar Desert. Yes. एक और नाम है उसका बच्चे. Western Desert. Okay, Western Desert, Thar Desert and the Great Indian Desert. 3 names के नाम से हम इनको जानते हैं. Clear? Next is which 2 rivers border this desert? कौन से 2 rivers हैं जो डेजर्ट की बाउंड्री बनाते हैं? Yes, tell me. Write in the chat box. 2 rivers के नेम लिखने बेटे. One is okay, good. Ekam, Arshpreet, Vanshika. Okay, good. Yes, Satluj River and Indus River. इन दोनों rivers के बीच वाला जो एरिया है वो जो है डेजर्ट पार्ट है. वेरी गुड. चलें. Next is, what are sand dunes? Sand dunes क्या होती हैं? Raise your hand those. Okay, Mayank has raised his hand. Mayank, I am going to unmute you. Sorry, मैंने वंशिका को कर दिया. वंशिका अनम्यूट करो बच्चे. Vanshika, unmute yourself and tell what are sand dunes. अब करो बच्ची. Sand dunes are hills formed by sand blown away from strings and winds are called sand dunes. Will you repeat it, Pete? A hill formed by sand blown away by strong winds are called sand dunes. Strong winds जो होती हैं अपने साथ जो डस्ट को उड़ा करके लेके जाती हैं और छोटी छोटी हिल्स बना देती हैं. मिट्टी का ढेर सा बन जाता है ना, वो हिल के जैसा दिखता है. हिल पता ना कैसी होती है? डू यू नो हिल कैसी होती है? हिल्स नोबडी नोस. हिल्स आप सीनरीज बनाते हो, माउंटेन्स बनाते हो ना. माउंटेन्स बड़ी बड़ी
होती है, लेकिन हिल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। तो जो हिल्स बनती हैं सैंड की, उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट हम करें माउंटेन्स बिग होती है बच्चे। चलें अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट ये पेज भी हो चुका था। दिस इज द एरिया वेयर दिस डेजर्ट लाई। सो नाउ रीड द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, one question was there. Name the seasonal river flowing in desert area. Name the seasonal river flowing in the desert area. Very good, Sargun. Yes, Luni River is flowing in this area. Okay, next is let's do climate and vegetation. Yash Kumar, start reading bete. Yash Kumar, it's your turn. Yes, bete, start reading. In summers, the days in the desert are very hot. Wait, Sargun, first read the topic. Which topic and page number also? Page number 31, climate and vegetation. Okay. In summers, the days in the desert. What do you mean by climate? Climate and vegetation का meaning क्या होता है? Write in the chat box. What is climate? Climate means वहाँ पर थोड़ा सा ठीक है weather और climate में difference होता है. This you will learn in your higher classes. कि वहाँ पर ज्यादातर मौसम कैसा रहता है, और वेजिटेशन होती है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें ग्रो करती है. क्लियर? तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि राजस्थान का या डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है और वहाँ पर क्या क्या चीजें ग्रो करती हैं. सो कंटिन्यू. सरगुन बोलो बच्चे. In summers, the days in the desert are very hot, but the nights are pleasant. In winters, the days are pleasant, but the nights are very cold. This is because sand heats up quickly during the day and also cools down quickly at night. Hot and dry winds are very common here. Okay. So now I'm telling you, in the desert, you know, there are loose sand. The place, the area is full of loose sand. चारों तरफ रेत ही रेत होती है, जिस कारण से रेत की ये क्वालिटी है, सैंड की ये क्वालिटी है कि वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है. सो जब सन आता है समर्स में, बहुत ज्यादा हीट होती है, तो सैंड जो है बहुत क्विकली गर्म हो जाती है, जिस कारण से डेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. ठीक है, डेज आर वेरी हॉट. उस टाइम पे डेज बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. सो वहां पे ड्राई विंड्स चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, ड्राई विंड्स चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं. ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा है ना, लू चल रही है, गर्मियों में लू चलती है, तो वो ड्राई एंड हॉट विंड्स को हम लू कहते हैं. वो कॉमन है डेजर्ट एरिया में. वहां पे गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉट विंड्स चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं. लेकिन रात आते आते रेत जो होती है, सैंड जो होती है, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण
नाइट्स जो होती है थोड़ी सी लोगों को राहत मिलती है, थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है, क्योंकि नाइट्स में जो रेत होती है वो जल्दी कूल भी हो जाती है, और इसलिए समर्स में डेज जो होते हैं बहुत हॉट होती है और नाइट्स जो होती है वो प्लेजेंट होती है। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे जो सर्दियां आती हैं तो सर्दियां जल्दी वो रेत फिर से जल्दी ठंडी हो जाती है, तो जो डेज होते हैं वो तो फिर भी प्लेजेंट रहते हैं, लेकिन रातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो इस कारण से वहां पर समर और विंटर का जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है लेकिन रातें ठंडी हो जाती हैं। सर्दियों में उलट होता है, दिन प्लेजेंट होते हैं लेकिन रातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। और गर्मियों में लू जो है, हॉट विंड्स जो है वो कॉमन है, बहुत गर्म और ड्राई हवाएं चलती हैं, जिस कारण से लोग अवॉइड करते हैं घर से निकल। आगे पढ़ो सरकुल बच्चे। The desert gets little or no rainfall. As a result, very few plants such as date palm, cactus, chicory, and babool, which require less water, grow here. वेरी गुड। तो एक तो ये क्वालिटी हो गई, साथ में दूसरा यहाँ का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया में जो रेन होती है वो ना के बराबर होती है, लिटिल बहुत कम बारिश होती है, और जिस कारण से यहाँ पर ज्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं करते। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है, वो वही प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं जो कि जिनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, ताकि वो जमीन के अंदर से पानी खींच सके, और थॉर्नी प्लांट्स ग्रो करते हैं। थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार झाड़ियां वहां पे ग्रो करती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कांटे होते हैं ना, उनके प्लांट्स के ऊपर जब थॉर्न्स आते हैं तो उससे इवेपोरेशन कम होती है। अब बड़ी क्लासेस में भी इसको पढ़ोगे, लीव्स के कंपैरेटिवली थॉर्न्स में से पानी इवेपोरेट बहुत कम होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट देखा होगा, उसके सारे प्लांट पे कांटे कांटे होते हैं। कैक्टस, डेट पाम, कीकर, बबूल, ऐसे प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं जिनसे कि इवेपोरेशन कम से कम हो। इवेपोरेशन मतलब पानी जो है वो प्लांट में से कम निकले। तो ऐसे प्लांट्स ही वहां पे ग्रो करते हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और उनमें से कैक्टस, कीकर, बबूल, डेट पाम प्लांट्स जो है वो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक स्किल कॉर्नर दिया हुआ है। स्किल कॉर्नर में है, लाइफ इज नॉट इजी इन अ डेजर्ट, कैन यू टेल व्हाई? चलिए डिस्कस करें। कौन बच्चा? यस, रेज योर हैंड जिनको लगता है कि वो इस चीज का आंसर दे सकते हैं। ओके, मयंक अनम्यूट। सरगुन बेटी अपने आप को म्यूट कर लो। सरगुन बेटी अपने आप को म्यूट कर लो आप। यस मयंक, स्पीक बेटे। यस मयंक, स्पीक बेटे। Life is not easy in desert. Life is not easy in desert. Why? Mayank, can you answer?
Mayank, can you answer? Yes, Cheshta. Life is not easy in the desert because the people in desert who live in desert have to go very far away from their home to get water. Very good. There is scarcity of And water and people have to move to faraway places to get water. Very good. 1 point. Yes. Another point. Can you tell another point? Shabash. the weather, the sun heats up in the morning, and that that's very difficult. Okay. To walk on the hot sand is very difficult. Okay. Now let me sum up. Mute yourself, Cheshta. Please mute yourself. Yes. One thing to there is scarcity of water. People are not getting water. They had to move to faraway places for the water. Another point is that harsh type of weather जो है वो बहुत harsh होता है, extreme type होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहां पे रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होती है. सो इन सब कारणों के कारण वहां पर जो है लोगों का रहना मुश्किल होता है. सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब हम यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. I have shared attendance link also. You please fill the attendance link also. And next, who will read? Sakshi. Sakshi, unmute yourself, bache. Life in Great Indian Desert. Beta, there is a Lifestyle from your side. Tell your parents to be quiet. Yes, ab bolo. Life in Great Indian Desert. Lifestyle refers to the way of living. You will find that people living in different regions have different lifestyles. Let us learn about the lifestyle of people living in the Great Indian Desert. Clothes. The people of the Great Indian Desert like to wear colorful clothes. The traditional clothes of the people of the Great Indian Desert include dhoti, kurta, and turban for men, and ghagra, choli, and orni for women. Wait, wait. Let me explain. Now, lifestyle means हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, वो कैसे अपना जीवन जीते हैं. तो वहां पर हम लोग जब जाएं एज ए टूरिस्ट, जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उनकी कलरफुल क्लोथ्स. आपने भी या आपके पेरेंट्स ने भी जरूर कुछ ना कुछ राजस्थानी ड्रेस खरीदी होगी जिसको हम टाई एंड डाई के कपड़े भी कहते हैं. तो दे यूज्ड टू डाई देयर क्लोथ्स इन डिफरेंट ब्राइट कलर्स. और वहाँ के लोग जो है हर रीजन में ना अलग अलग लाइफस्टाइल उनका होता है. सबसे पहले हम जब क्लोथ्स की बात करते हैं तो उनकी ड्रेसिंग में जो मेन होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस उनकी क्या है? धोती कुर्ता. धोती कुर्ता और साथ में टर्बन जरूर बांधते हैं बिकॉज वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है. तो इसके लिए वो हेड को कवर करके रखते हैं. तो कवर करने के लिए दे यूज टर्बन. और ये सारे जो कपड़े होते हैं उनके वो कलरफुल होते हैं. लेडीज भी जो है वो भी घाघरा चोली पहनते हैं, साथ में ओढ़नी जिसको हम दुपट्टा कहते हैं. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ऑल्सो. तो दे आर वियरिंग
these type of clothes. Clear? So in this way, they have different type of lifestyles. Next comes language. Yes, bete, read it. Sakshi. I think वो चली गई है. हर्षिता बेंस, आप पढ़ो बच्चे. Unmute yourself. Yes, ma'am. Read. Ma'am, the main languages spoken by the people of the deserts are Pakistani, Marwari, and Hindi. Marwari. Festivals. The Wait, हर्षिता. लैंग्वेजेस है, राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं. जैसे हम पंजाब में रह के पंजाबी हमारी रीजनल लैंग्वेज है ना, तो वैसे ही वहाँ के लोग जो है वो राजस्थानी बोलते हैं या मारवाड़ी. ओके, और हिंदी भी साथ में बोलते हैं. नेक्स्ट, फेस्टिवल्स. Read it, bete. Ma'am, festivals. The people of the desert celebrate all the major Indian festivals. However, the main festivals celebrated here are Tej, Gangaur, and Desert Festival. Very good. Dances. Wait, bas. Ghumar. Wait, bete, wait. Today we will do up to this only. Mark कर लो, बाकी का जो काम है वो हम कल करेंगे. फेस्टिवल्स, सारे जो मेजर फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, वो सारे फेस्टिवल्स राजस्थान में भी मनाए जाते हैं. लेकिन यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल है, रीजनल फेस्टिवल्स हैं, उनमें से मेन फेस्टिवल कौन से हैं? तीज. एक तो तीज है और गंगौर है. डेजर्ट फेस्टिवल यहाँ पे देखो पिक्चर में, राजस्थानी मैन पार्टिसिपेटिंग इन द मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ डेजर्ट फेस्टिवल. डेजर्ट फेस्टिवल में वो अलग अलग तरह की छोटी मोटी कॉन्टेस्ट कराते हैं, छोटे छोटे से खेल जो करवाते हैं. तो इस तरह से डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है. क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया है? सो बेटे, रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली वंस अगेन. और आज आपको होमवर्क में डिफाइन द टर्म्स दे रहे हैं. ओके, 33 पेज पे डिफाइन द टर्म्स है, वो आपने लर्न करनी है. टुमारो आई विल आस्क फ्रॉम दीज. और बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी कर ली है और कल मैं आपसे वो पूछूंगी. अब आपका कोई डाउट है तो यू प्लीज आस्क मी अबाउट योर डाउट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द sharing the screen and tell me about your doubts. If you have any doubts, you can ask me one by one. Yes, Namanjot, do you have any doubt? Those who have raised their hands, they have doubt. Harkirat Singh, Hanji, bole bache. Unmute yourself, Harkirat Singh. Ma'am, meaning of pleasant. Speak again. Speak again, bete.